यस बेटे, पेज नंबर 34 पे आ जाएंगे सभी स्टूडेंट, बुक अपने सामने रखेंगे। Okay, division Bryophyta. We are going to start today, and it is an entirely new topic because earlier you have studied about bryophytes a little bit, but now you are going to study in detail about these bryophytes. So in yesterday's lecture, I have explained you that bryophytes are such plants which are a little bit more advanced than the algae. Okay, bete? So one similarity that is found between the bryophytes as well as the algae is both of them has a thalloid type of body. If I am saying thalloid type of body, this means कि ब्रायोफाइट्स के अंदर और एल्गीज के अंदर दोनों के अंदर थैलस लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है? थैलस से बनी हुई है। और अगर वो कहते हैं कि उनकी बॉडी थैलस लाइक है, तो इन केस ऑफ एल्गी दैट थैलस इज नॉट प्रॉपर्ली डेवलप्ड। ठीक है, इट इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड इन केस ऑफ एल्गी। एल्गी के केस में जो thallus है, it is not well differentiated. But as I have explained you that bryophytes are a little bit advanced than the algae. This means in case of bryophytes, the thallus or the thalloid body, it is a well differentiated type of body. ठीक है, तो you can able to find out the roots, stems and leaf-like structures in them. I'm not saying कि true leaves या true roots या true stem-like structures होंगे, पर stem से मिलते जुलते हैं, root से, leaves से मिलते जुलते structures are present in case of bryophytes. So here the thallus is well differentiated. We are able to find out root-like structures which are known as rhizoids. Okay, but stem-like structures are also there. And how can you identify these stem-like structures? So yesterday I have already explained कि जब भी हमें स्टेम को आइडेंटिफाई करना होता है ना, तो ऑलवेज द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। ठीक है, अगर आपने किसी भी स्टेम को ध्यान से देखा है तो उसमें कुछ पार्टीशंस होती हैं। जो पार्टीशंस होती हैं, ठीक है, उनके जो पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं, उनको हम नोड्स कहते हैं। और दो पार्टीशंस के बीच का जो पार्ट है, इट इज नोन एज इंटरनोड। तो सिमिलर इज द केस ऑफ ब्रायोफाइट आल्सो। In bryophytes, we are able to find out such a type of thallus structures which bears nodes and internodes. तो उसको हमने क्या मान लिया है? उसको हमने स्टेम के अंदर कंसीडर कर लिए। ओके बेटे, तो स्टेम जो है उससे ऊपर जो है वो कहते हैं कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर आल्सो देयर। आपको कैसे पता लगा कि दीज आर द लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स? सो देयर इज अ थिंग दैट इज एक्चुअली प्रेजेंट, and that is the presence of veins in the leaves. You know that किसी भी लीफ को अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या प्रेजेंट होती है? वेन्स और वेनलेट्स प्रेजेंट होती है। तो उसी तरह से ब्रायोफाइट में भी दो स्ट्रक्चर्स which are green in color and have veins and venlets. ओके बेटे, तो उनको हमने क्या मान लिया है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मान लिया है। अब वो कहते हैं कि रिगार्डिंग देयर हैबिटेट, तो वी कैन से दैट कि these bryophytes they are generally found in moist and damp kind of conditions. ठीक है, ऐसी कंडीशंस जो हमेशा मॉइस्ट, डैम्प, ह्यूमिड होती हैं, वहां पे हमें ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो व्हेन यू विजिट अ हिल स्टेशन और अ माउंटेन एरिया, तो उस माउंटेन एरिया या हिल स्टेशन में अगर आप जाते हो, वहां पे आपको स्प्रिंग्स या स्ट्रीम्स नजर आती है। ठीक बेटे, या हिंदी में मैं आपको बताऊं, झीलें आपको नजर आती हैं या आपको झरने नजर आती हैं? So there may be some different kind of rocks that are actually lying at the bank of those streams and you can say springs. So what you see, these rocks are the moist one, and on these moist rocks there is a coating of bryophytes. ठीक है, अगर आप उन rocks को ध्यान से देखेंगे, आपको उसके ऊपर bryophytes की growth नजर आती है। And when you try to push those plants, you are not able to push them because with the help of their root-like structures, which are known as rhizoids, they are deeply embedded inside the rocks. ठीक है, वो rocks में काफी deeply embedded होती है, तो इसलिए आप उनको इजीली जो है वो फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, उनको आप पुल नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली आपको हिल्स में ये नजर आएंगे, रिवर बैंक्स पे जो मॉइस्ट रॉक्स हैं वहां पे आपको नजर आएंगे। Another thing is कि they are known as the amphibians of the plant kingdom. Why they are known as amphibians? So that I have already explained that most of their life cycle they completed as a terrestrial plant. ज्यादातर अपना लाइफ साइकिल जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट की तरह कंप्लीट करते हैं, बट व्हेन दे हैव टू बी रिप्रोड्यूस, ओके, क्योंकि ये थैलस जो है, इनकी बॉडी थैलस लाइक है, दिस मींस इनके एंसेस्टर्स कौन रहे हैं? एल्गीज रहे हैं। और एल्गीज हमेशा
मॉइस्ट एनवायरनमेंट में होती हैं, तो कहते हैं कि व्हेन दे रीच देयर रिप्रोडक्टिव स्टेजेस दे मस्ट हैव टू बी enter into water so that they can successfully reproduce. So that's why their lifespan, some of the time of their life, they generally spend as a terrestrial plant, and during their reproductive stages they actually enters into the water. Okay, so that their gametes can easily swim through the water, they come in contact with the female gamete and successful formation of zygote is there. Okay, that's why they are known as the amphibians of the plant kingdom. ओके बेटे, तो हमेशा डैम्प शेडेड प्लेसेस पे ये नजर आएंगे, बहुत ज्यादा सनलाइट की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। ओके, अब वो कहते हैं कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट बॉडी, तो हियर द थैलस इज वेल डिफरेंशिएटेड, ठीक है, एज कंपेयर टू द एल्गी। और इसके अलावा कहते हैं कि दीज प्लांट्स मे बी प्रोस्टेट और इरेक्ट। ये प्लांट जो है या तो हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, सॉइल सरफेस के साथ साथ पैरेलल ग्रो करती हैं, या फिर दे ग्रो इन अ वर्टिकल फैशन और इरेक्ट फैशन, ठीक है, या तो सॉइल के हॉरिजॉन्टली ग्रो करेंगे या सीधे खड़े हो जाएंगे सॉइल पे, तो ये प्रोस्टेट भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं। एंड हाउ दे आर अटैच्ड विद द सॉइल सबस्ट्रेटम, तो दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि they are attached with the soil substratum with the help of root-like structures, and their root-like structures are known as rhizoids, because you know that true roots are not there. So if true roots are not there, root-like structures are there with the help of which they are attached with the substratum. So these root-like structures are known as rhizoids. Okay, but beside the root-like structures, the leaf-like structures and stem-like structures are also there. तो आपको बताया था कि how can you identify the leaf-like structure, because of the presence of veins and veinlets in them. And how you are able to find out that these structures are the stem-like structure, because they have nodes and internodes. हमेशा स्टेम के अंदर नोड और इंटरनोड होती हैं, और हमेशा लीफ के अंदर वेन्स और वेनलेट्स होती हैं। उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि थैलस का ये वाला पार्ट लीफ लाइक है, और ये वाला पार्ट स्टेम लाइक है, और वो वाला पार्ट रूट लाइक है। ओके बेटे, आप देखो, यू नो दैट कि हर एक प्लांट जो है उसकी लाइफ साइकिल में 2 फेजेस होते हैं। वन इज द गैमेटोफिटिक फेज एंड अनदर इज द स्पोरोफिटिक फेज, और दोनों फेजेस में से वन फेज इज ऑलवेज अ डोमिनेंट फेज, ठीक। तो उसी तरह से ब्रायोफाइट्स जो हैं, देयर लाइफ साइकिल आल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस, वन इज द गैमेटोफिटिक फेज एंड अदर इज स्पोरोफिटिक फेज। हमेशा याद रखिए कि गैमेटोफिटिक फेज इज अ हैप्लॉइड फेज। गैमेटोफिटिक फेज जो है उसमें प्लांट बॉडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। एंड इन स्पोरोफिटिक फेज, ठीक है, स्पोरोफिटिक फेज हमेशा डिप्लॉइड फेज जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसकी शुरुआत जाइगोट से होती है। ओके बेटे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द गैमेटोफिटिक फेज, बिकॉज द गैमेटोफिटिक फेज इज अ डोमिनेंट फेज इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स में जो डोमिनेंट फेज होता है उसके लाइफ साइकिल का, वो गैमेटोफिटिक फेज है। ओके स्टूडेंट्स, सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि गैमेटोफिटिक फेज हमेशा कैसा होता है, हैप्लॉइड फेज होता है, उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो देखो नेम से ही पता लग रहा है, इफ इट इज अ गैमेटोफिटिक फेज, दैट दिस मींस इन दिस फेज द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स शुड बी देयर, ठीक है, इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। और आपको ये भी पता है, यू हैव लर्नड इन लोअर क्लासेस कि गैमेट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन द सेक्स ऑर्गन्स। गैमेट्स हमेशा किसके अंदर बनती हैं, सेक्स ऑर्गन्स में बनती हैं। ओके बेटे, तो सिमिलर इज द केस विद द ब्रायोफाइट्स टू। So when these bryophytes they reaches their reproductive phase, जब ये ब्रायोफाइट्स अपने रिप्रोडक्टिव स्टेज पर आ जाते हैं, तो इनकी जो थैलस लाइक बॉडी होती है, ठीक है, उसके ऊपर क्या अपीयर होती है, फ्रूटिंग बॉडीज लग जाती है, उसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होती हैं। और वो कहते हैं कि ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं, ये क्या बियर करती हैं, ये मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करती हैं। I am saying when the bryophytes they reach their reproductive stage, they always develop fruiting bodies on their thallus, and these fruiting bodies they behave as male and female sex organ. अब याद रखिए, वो fruiting body जो मेल सेक्स ऑर्गन की तरह बिहेव करती है, ठीक बेटे, उसको मैंने क्या बोला है, एंथ्रीडियोफोर बोला है। फिर से सुनेंगे, वो फ्रूटिंग बॉडी जो मेल सेक्स ऑर्गन को बियर करती है, इट इज नोन एज एंथ्रीडियोफोर, और उसमें प्रेजेंट जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसको मैंने नेम दिया है एंथ्रीडियम।
ओके। एंड अगर मैं फीमेल की बात कर रही हूँ तो फीमेल फ्रूटिंग बॉडी जो है थैलस पे जो प्रेजेंट है, इट इज नोन एज आर्किगोनियोफोर, और उसके अंदर जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज नोन एज आर्किगोनिया। Okay, बेटे, now what happen among the male and the female sex organ? What is going to be produced now? So here the formation of the gametes should happen. Okay, बेटे, so inside the antheridium, which is the male sex organ, what is going to be developed? So inside the antheridium, the male gametes are going to be developed, and these male gametes, okay, these male gametes are known as anthrozoids. They are known as anthrozoids. हमेशा याद रखिए ब्रायोफाइट्स के मेल गैमेट्स को क्या नेम दिया गया है, एंथ्रोजोइड्स। किसके अंदर बनेंगे? मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेंगे, जिसको एंथ्रीडियम बोला है। और मेल सेक्स ऑर्गन जिस फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होगा, मेल फ्रूटिंग बॉडी में, उसको क्या बोला है? एंथ्रीडियोफोर बोला है। ओके बेटे, सो एंथ्रीडियोफोर के अंदर एंथ्रीडियम, और एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड, और एंथ्रोजोइड क्या है? मेल गैमेट्स है। अब आइए फीमेल पे, तो फीमेल फ्रूटिंग बॉडी का नेम था आर्किगोनियोफोर, एंड आर्किगोनियोफोर के अंदर क्या प्रेजेंट है? आर्किगोनिया इज देयर, व्हिच इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंड दिस आर्किगोनिया, ओके बेटे, दिस आर्किगोनिया हैज अ स्पेशल टाइप ऑफ शेप, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ दिस आर्किगोनिया? द शेप ऑफ द आर्किगोनिया इज फ्लास्क शेप। ठीक है, जैसे घर में हम फ्लास्क रखते हैं उस तरह का इसका शेप होता है, सुराई जैसी शेप होती है। ओके, और आर्किगोनिया के अंदर आपको पता है कि फीमेल गैमेट डेवलप होंगे, तो आर्किगोनिया में जो फीमेल गैमेट्स डेवलप होंगे, दीज फीमेल गैमेट्स आर नोन एज द एग सेल। इसको क्या बोलेंगे? एग सेल बोलेंगे। तो हमेशा आर्किगोनिया के अंदर ब्रायोफाइट्स में एक सिंगल एग प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? अब वही होगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, तो एंथ्रोजोइड्स जो है विच आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथ्रीडियम, दे कम्स आउट फ्रॉम द एंथ्रीडियम व्हेन द एंथ्रोजोइड्स दे गेट मैच्योर। ओके बेटे, तो ये एंथ्रोजोइड्स जो है वो एंथ्रीडियम में से बाहर आ जाएंगे, और आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन के लिए वाटर में जाते हैं। सो दीज एंथ्रोजोइड्स दे स्विम थ्रू वाटर करंट्स एंड दे ट्राई टू रीच द आर्किगोनिया व्हिच कंटेन्स द एग सेल। तो इमेजिन करिए कि एंथ्रोजोइड वाटर में स्विम करते हुए जा रहे हैं और वो आर्किगोनिया के पास पहुंचते हैं, एंड आर्किगोनिया इज अ फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। Okay, they enter into the archegonia and they pass it through the neck of the archegonia, and they, when they come at the bottom of the archegonia, what they found? They found the egg cell there. Okay, now these anthrozoid they fused with this egg cell. ये एंथ्रोजोइड जो है वो एग सेल के साथ फ्यूज कर जाते हैं स्टूडेंट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब भी फ्यूज करते हैं तो यू नो दैट कि आफ्टर द फ्यूजन व्हाट इज फॉर्म्ड? अ जाइगोट इज फॉर्म्ड। तो एंथ्रोजोइड इज 1n हैप्लॉइड है, और एग सेल भी 1n है, यानी वो भी हैप्लॉइड है, और जब दोनों फ्यूज करेंगे तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। ओके बेटे, अब मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ब्रायोफाइट्स के जो मेन फेस है वो गैमेटोफिटिक फेस है, वो हैप्लॉइड फेस होता है, यानी मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट्स की हैप्लॉइड है। ओके, अब जाइगोट फॉर्म हो गया, तो जाइगोट हियर रिप्रेजेंट अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो अब क्या होगा? इस जाइगोट के अंदर जो है क्या होनी चाहिए? मियोसिस होनी चाहिए। ठीक है, हम यही सोच रहे हैं कि अगर जाइगोट में मियोसिस हो जाए तो फिर से जो भी चीज बनेगी उससे फिर से हैप्लॉइड फेस आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता यहाँ। ठीक है, दिस जाइगोट हियर डू नॉट अंडरगोज मियोसिस। ये जाइगोट जो है वो मियोसिस में नहीं जाता है, और अगर ये मियोसिस में नहीं जाता तो जाइगोट क्या करता है? तो this zygote it directly develops into a multicellular body, and this multicellular body it is known as a sporophyte. ठीक है, याद रखिए कि जाइगोट में कोई मियोसिस नहीं होगी, और जाइगोट डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा into a multicellular body, and that multicellular body it is known as a sporophyte. Okay बेटे, so here all of these things, all of these events, they are actually occurs on the thallus-like body which actually represent the gametophyte of the bryophyte. तो सारे के सारे इवेंट जो हैं वो थैलस के ऊपर ही तो हो रही हैं, उसी पे फ्रूटिंग बॉडीज लगी थी, उसी पे सेक्स ऑर्गन्स थे, उसी में मेल गैमेट फीमेल गैमेट डेवलप हुए। ठीक बेटे, तो कहते हैं कि जो स्पोरोफाइट बनता है ना, दैट स्पोरोफाइट इट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दिस गैमेटोफाइट।
which is actually in the form of a thallus-like body. So sporophyte, it is attached with the gametophyte. But you know that sporophyte is a diploid structure and gametophyte is a haploid structure. तो कुछ टाइम के लिए ये स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट के साथ ही अटैच रहता है. ओके बेटा, ये पिक्चर में आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये वाला डायग्राम. तो उसमें देखिए आपको मार्केशिया नजर आ रहा है, विच इज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ ब्रायोफाइट. एंड हियर आई एम शोइंग यू these root like structures are there which are known as rhizoid. उसके अलावा देखो उसने और क्या लिखा है, ये आपको एंथ्रीडियोफोर ब्रांच नजर आ रही है. एंथ्रीडियोफोर मैंने आपको बताया था फ्रूटिंग बॉडी होती है किसकी, मेल की. और यहाँ पे देखिए आपको आर्किगोनियोफोर नजर आ रही है, और आर्किगोनियोफोर जो है वो फ्रूटिंग बॉडी है किसकी, फीमेल की. ठीक बेटे, तो आर्किगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर हमेशा याद रखिए. एंथ्रीडियोफोर इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एंड आर्किगोनियोफोर इज अ अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर. आर्किगोनियोफोर जो है वो अम्ब्रेला शेप होती है हमेशा, और जो एंथ्रीडियोफोर है वो हमेशा डिस्क शेप होता है. ठीक है, तो आर्किगोनियोफोर पे क्या लगेगा, आर्किगोनिया विच इज अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर. एंथ्रीडियोफोर पे एंथ्रीडियम. ओके, एंथ्रीडियम में क्या बनेंगे, मेल गैमेट्स विच आर नोन एज एंथ्रोजोइड. एंड आर्किगोनियोफोर जो है उसके अंदर आर्किगोनिया था जो फ्लास्क शेप था, उसके अंदर एग सेल है. तो मैंने आपको बताया कि when the wind blows, these anthrozoids they come from the anthridium, they fall on the surface of water, they swim through the water currents and finally reaches that thallus which contain the archigoniophore, and they enter into the archigonia, they come in contact with the egg cell, they fuse with the egg cell and they form zygote. But what is the strange thing is here is that the zygote is not undergoing any meiosis. Instead of that, the zygote, it develops into a diploid phase, and that is sporophyte. And another very interesting thing is that this sporophyte, it remains on the gametophytic thallus. It obtains nutrition from the gametophytic thallus. Okay बेटे, तो zygote का जो diploid nucleus था ना, that goes into the sporophyte. अब वो sporophyte में चला गया है, और जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर वो जाइगोट का डिप्लॉयड न्यूक्लियस पड़ा है. और आपको ये पता है कि ब्रायोफाइट की जो मेन प्लांट बॉडी है वो तो हैप्लॉइड है. इसका मतलब जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर जाइगोट न्यूक्लियस चला गया है जो डिप्लॉयड है, तो उसमें मियोसिस होना ही होना है, हर हालत में होना है. ठीक है, तभी तो फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तभी तो न्यू थैलस डेवलप होगा जो हैप्लॉइड होगा. ओके बेटे, तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि मियोसिस होता है, उससे पहले एक और चीज आप याद रखेंगे कि स्पोरोफाइट जो है, ओके स्टूडेंट, स्पोरोफाइट जो है उसके 3 पार्ट्स होते हैं. लिसन टू मी केयरफुली. स्पोरोफाइट के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं. एंड दैट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट विच इज द बॉटम पार्ट एंड बाय विच इट अटैच्ड विद द गैमेटोफिटिक थैलस. ओके बेटे, दैट पार्ट जो है उसको क्या नेम दिया गया है, फुट नेम दिया गया है, फुट. दैट इज FOOT, फुट. ओके, उसके बाद वो कहते हैं कि देयर इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. जैसे ट्री का स्टेम होता है ना, उसी तरह से फुट से आगे एक स्टॉक लाइक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है बेटे, उसको क्या नेम दिया गया है, सीटा नेम दिया गया है. दैट इज SETA, सीटा. एंड एट द टॉप मोस्ट पार्ट, ठीक है, देयर इज अ ब्रॉड स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ए कैप्सूल, तो उसको नेम भी कैप्सूल ही दिया गया है. तो हमेशा याद रखिए कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट है. टॉप मोस्ट पार्ट इज नोन एज कैप्सूल. Then there is a bridge-like part which connects the capsule with the foot. That is known as seta, and the bottom part is known as what? The bottom part, it is known as foot. Okay, बेटे. So see this diagram that is given in your book. ये वाला डायग्राम देखो जो आपकी बुक में प्रेजेंट है, और उसमें देखो ये वाला नीचे वाला डायग्राम जिसमें आपको स्पोरोफाइट नजर आ रहा है, और स्पोरोफाइट के तीनों पार्ट आपको नजर आ रहे हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. ओके बेटे, तो ये तो मैंने आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर, ओवरऑल लाइफ स्पैन बता दिया ब्रायोफाइट. अब मैं आपको बताऊंगी लीवर वॉर्ट्स में क्या होता है और मॉसेस में क्या होता है, बिकॉज ब्रायोफाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, लीवर वॉर्ट्स एंड मॉसेस. ठीक है, लीवर वॉर्ट्स जो है उसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो है वो ज्यादा डेवलप होती हैं, और मॉसेस जो है उसमें ये डिफरेंस है कि मॉसेस की बॉडी ज्यादा थैलस लाइक होती है, उसमें थैलस इतना ज्यादा डिफरेंशिएटेड नहीं होता. ओके बेटे, तो इससे पहले देखिए देयर इज वन पैराग्राफ दैट इज कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. तो व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स? तो ऑलवेज रिमेंबर
कि ब्रायोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स, लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस. तो मोस्ट ऑफ द मॉसेस दे आर एक्चुअली एक्टिंग एज फूड फॉर द हर्बेशियस एनिमल्स. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो हर्ब्स के ऊपर फीड करती हैं वो मॉसेस को भी खाते हैं, तो उनके लिए ये एक फूड है. उसमें मैमल्स भी आ सकती हैं, बर्ड्स भी, अदर एनिमल्स भी. ओके, तो देयर इज वन स्पेशल स्पीशीज ऑफ मॉस विच इज नोन एज स्फिग्नम. फिर से सुनेंगे, देयर इज अ स्पेशल स्पीशीज ऑफ मॉस विच इज नोन एज स्फिग्नम. और स्फिग्नम एक ऐसा मॉस है, ठीक है, तो कहते हैं कि जहां पे भी ये वाला मॉस ग्रो कर रहा हो ना, स्फिग्नम, अगर आप वहां से जो है अर्थ को डग करके निकालेंगे तो आपको वहां से कोल मिलता. ठीक है, तो देयर इज अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कोल विच इज नोन एज पीट. अगर आपने सोशल साइंस में पढ़ा है तो आपको पता है कि कोयले की एक खास वेराइटी है जिसको पीट कहती हैं. तो अगर किसी जगह पे ना स्फिग्नम मॉस ग्रो कर रहा है, उसके नीचे से अगर आप खुदाई करेंगे जमीन की, तो आपको वहां से पीट के, कोल के बहुत सारे जो हैं माइंस मिलने की गुंजाइश होती है. Okay, but another very important, very interesting thing that is related with sphagnum is that this moss has ability to hold more and more water for a longer time. ठीक है, ये जो स्पेगनम मॉस होता है ना, ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करके रख सकता है. इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है? हाइड्रोक्लोराइड की प्रॉपर्टी है. इट कैन होल्ड वाटर फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो इसीलिए वो कहते हैं कि इसको हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं. तो समटाइम्स when we have to do the shipment of some of the food material which can easily spoil. ठीक है, अगर हमने शिप से अपने कंट्री में से कोई शिप जो है उसको दूसरे कंट्री में भेजना है और उसमें हमने फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो है वो सेंड करनी है, तो आपको पता है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं वो कुछ दिनों में स्पॉइल कर सकती हैं. तो हम क्या करते हैं, इनके जो कार्टन्स होते हैं ना, उसके अंदर हम जो है आसपास स्फिग्नम मॉस जो है उसको हम उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को कवर करके रखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको एक बार गीला करेंगे तो ये काफी टाइम के लिए जो है इट कैन होल्ड वाटर. सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज रिलेटेड विद स्फिग्नम मॉस. Another is कि as I have already explained you कि when the evolution of the earth takes place, so there are some of the plant species which act as beginners on the surface of the earth. तो सबसे पहले जब अर्थ की सरफेस जो है उसके ऊपर जो है प्लांट्स देखे गए थे ना, वेजिटेशन देखी गई थी, तो सबसे पहले ये माना जाता है कि रॉक्स पे ग्रो करने वाले सबसे पहले जो प्लांट्स थे दे आर द लाइकन्स. तो some of the scientists they also believe that along with the lichens, the mosses which comes under bryophytes, they are also the pioneer species during the evolution of the earth. They first appears on the rocks which are present on the surface of the earth. Okay, but another very important thing is कि these mosses along with the lichens they produce certain specific type of acids, and because of these acids the weathering of the rocks takes place in the primitive earth, and as a result soil formation happens. ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे कि जब सबसे पहले ये लाइकन्स और मॉसेस बिगर रॉक्स जो है उनके सरफेस पे ग्रो किए, तो फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, कुछ स्पेसिफिक टाइप की एसिड्स प्रोड्यूस की, जैसे प्रिमिटिव अर्थ की सरफेस में प्रेजेंट दोस बिगर रॉक्स, उनकी वेदरिंग हो गई और उससे सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से इन्होंने जो एक सबस्ट्रेटम तैयार किया फॉर द अपकमिंग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स. इसीलिए इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है. ओके बेटे, another very important thing is कि as these lichens and mosses they generally grows on the surface of the soil as dense mats. ठीक है, ये डेंस मैट्स की तरह सॉइल की सरफेस पे ग्रो करते हैं, तो इसीलिए सॉइल इरोजन को भी ये प्रिवेंट करते हैं. सो व्हेन देयर इज अ हैवी रेनफॉल देयर इज लेस चांसेस ऑफ सॉइल इरोजन at those places of soil where the soil is covered with these mosses and lichens. So they prevent soil erosion. Okay, students. So I have already explained you that bryophytes are of two types. These may be liverworts or these may be what? These may be mosses. Okay, बेटे, तो यहाँ पे जो आपको पिक्चर नजर आ रही है ना, वो liverwort की पिक्चर है. तो there are two examples of liverwort. One is Markensia and another is Rixia. ठीक है, तो Rixia and Markensia जो है उनका जो thallus है वो थोड़ा सा differentiated होता है, and we can easily identify the root-like structures which are known as rhizoids, the stem-like structures which have nodes and internodes,
and the leaf-like structures which have veins and veinlets. तो यहाँ पे आपको देखिए मार्केंशिया के आपको लीफ-like स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, उसमें वेन्स भी नजर आ रही हैं जैसे एक नॉर्मल लीफ में होती हैं. इसके अलावा देखो देयर आर सम cup-like structures that are present on these leaf-like structures. So what are these cup-like structures? तो ये cup-like structures जो है ना इनको गैमा कप कहते हैं. ठीक है, तो लीवर वॉट्स जो है उनमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है. ओके बेटे, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है लीवर वॉट्स के अंदर कैसे होती है? तो ड्यूरिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन some cup like structures they are actually formed on the leaf like structures of these liverworts, and these cup like structures are known as gamma cup. क्या कहते हैं इसको? गैमा कप कहते हैं. GEMMA गैमा कप. ओके बेटे, तो ये छोटे छोटे से जो गैमा कप्स होते हैं ना उसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको एसेक्सुअल बर्ड्स नजर आती हैं, और ये जो एसेक्सुअल बर्ड्स हैं दे आर नोन एज गैमे. Okay, so when the wind blows, what happen? These gametes, which are the asexual birds, they comes from the gamma cup and they fall on the suitable substratum that is rich in moisture, humid place, or you can say damp place. They grow on that substratum and then they form the thallus of the liverwort again. तो इस तरह से liverwort का फिर से thallus जो है वो फॉर्म हो जाता है. तो ये तो हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके बेटे, तो याद रखिए कि गैमास आर द ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स. दे आर डेवलप्स इन स्मॉल रिसेप्टिकल्स और cups which are known as gamma cups, and these gamma cups they are actually present on the leaf like structure of the thallus. ओके स्टूडेंट, तो इसके अलावा वो कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है. तो अभी मैंने आपको जनरल बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वैसे ही होगी. ठीक बेटे, तो ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेजेस व्हाट हैपन? द फ्रूटिंग बॉडीज दे डेवलप on the thallus like body. So here the thallus of the liverwort it actually represent the gametophytic phase and it is a haploid phase. Okay, so when the liverwort they reaches their sexual stages, then on this thallus like structure what is formed? Fruiting bodies they develop. तो देखो एक चीज याद रखेंगे, या तो ऐसा होगा कि एक ही थैलस के ऊपर एंथ्रिडियोफोर भी डेवलप हो जाएगा एंड आर्किगोनियोफोर भी डेवलप हो जाएगा, दोनों ही फ्रूटिंग बॉडीज डेवलप होंगी, या फिर द कंडीशन में भी द अनदर वन. ठीक है, एक थैलस के ऊपर एंथ्रिडियोफोर इज देयर एंड ऑन अनदर थैलस आर्किगोनियोफोर इज देयर. ओके बेटे, तो एंथ्रिडियोफोर एक थैलस पे आपको लगा हुआ नजर आ रहा है एंड दूसरे पे आपको आर्किगोनियोफोर नजर आ रहे हैं. आपको पता है कि एंथ्रिडियोफोर में व्हाट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट? मेल सेक्स ऑर्गन इज देयर and that is antheridium, and on archegoniophore a flask shape archegonia is there. Then on the antheridium what is going to develop? Male gametes are going to develop which are known as anthozoite, and inside the archegonium which is a flask shape structure the female gamete is there and that is the egg cell. ठीक बेटे, अब देखो एंथ्रिडियोफोर जो है उसमें जब एंथ्रोजोइड मैच्योर हो जाएंगे एंथ्रिडिया के अंदर, तो फिर वो एंथ्रिडिया में से बाहर आ जाएंगे. when the wind blow they fall on water currents and they swim through water current. They try to reach that thallus which contains archegoniophore containing archegonia and egg cell. ठीक है, they enter into the archegonia which is a flask shaped structure. They pass it through the neck of the archegonia, they goes to the bottom, they find the egg cell, they fuse with the egg cell, they form zygote. Okay students, अब सबको पता है कि जायगोट में मियोसिस बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि जायगोट जो है उसने किस में डेवलप होना है? एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में डेवलप होना है विच इज नोन एज स्पोरोफाइट. अब इमेजिन करो कि जायगोट जो है उसका न्यूक्लियस स्पोरोफाइट में चला गया है, और आपको पता है कि स्पोरोफाइट के 3 पार्ट्स हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल. एंड दिस स्पोरोफाइट इट इज अटैच्ड बाय इट्स फुट विद द gametophytic thallus, and then सीटा stalk like structure is there, and then the topmost structure is known as capsule. So zygote nucleus it finally rests in the capsule. Now what happened? वही होगा जो सभी सोच रहे हैं. inside the zygote meiosis will takes place, and when meiosis takes place then what happened? meiosis जैसे ही होगा तो diploid zygote जो है वो haploid spores में convert हो जाएगा students, and this haploid spores they comes out from the capsule. When the capsule mature they fall on the moist substratum, and as soon as they get moisture they germinate,
और जैसे ही ये हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करेंगे ये फिर से एक नया थैलस जो है वो बना देंगे। ठीक बेटे, तो फिर से लीवर गॉड का नया थैलस जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो बस इतना सा है ब्रायोफाइट्स में लीवर गॉड का स्ट्रक्चर। ओके बेटे, अब वो कहते हैं कि अगर हम लीवर गॉड की जगह मॉसेस की बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन द मॉसेस एंड द लीवर गॉड्स। ठीक है, तो मॉसेस जो होते हैं उनके लाइफ साइकिल जो है उसमें जो गैमेटोफिटिक फेज है उसमें हमें 2 स्टेजेस नजर आती हैं स्टूडेंट्स। So 2 stages are there in the gametophytic phase of the mosses. First stage is known as the protonema stage and second stage is known as the leafy stage. I am again repeating, in the life cycle of the mosses of bryophytes, in the gametophytic phase, 2 stages are there. First stage is known as the protonema stage and second stage is known as the leafy stage. अब ध्यान से सुनेंगे कि जो प्रोटोनिमा स्टेज होती है ना वो हमें कैसे नजर आती है। तो देखो हर एक जो चाहे वो लीवर गॉट है चाहे वो मॉसिस है उसकी शुरुआत किससे हुई है, एक हैप्लॉइड स्पोर के जर्मिनेट होने से ही तो हुई है ना। तो फिर कहते हैं कि जैसे ही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करता है तो अगर ये मॉस है तो उस केस में हैप्लॉइड स्पोर व्हेन दे जर्मिनेट then they give rise to the first stage of the moss which is known as the protonema stage. ठीक है, तो अपनी प्रोटोनेमा स्टेज में मॉस आपको कैसा नजर आता है, तो कहते हैं कि उस केस में हमें ये एक क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर की तरह डेवलप लगता है। ठीक है, ऐसे हमें लगता है कि जैसे सॉइल की सरफेस पे एक ग्रीन ब्रांच जो है वो सॉइल की सरफेस पे पैरेलल ग्रो कर रही है और उसने काफी सारे लीव्स जो है उनको बियर किया हुआ है। ठीक है बेटे, तो ये ग्रीन ब्रांच आपको ऐसा लगता है कि वो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही है सॉइल की सरफेस पे और जो है उसकी कई सारी ब्रांचेस भी हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि एज सून एज इट एंटर इनटू इट्स लीफी स्टेज, तो ये पहले तो हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रही थी ना क्रीपिंग मैनर में, अब ये ऐसे सीधे खड़े हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ब्रांचेस इसके सीधे खड़े हो जाएंगे एंड काफी सारे लीव्स बियर कर लेंगी, तो दैट स्टेज इज नोन एज द लीफी स्टेज। फिर से सुनेंगे, व्हेन इट एंटर्स इनटू इट्स प्रोटोनेमा स्टेज व्हिच इज द फर्स्ट स्टेज, इट इज इन द फॉर्म ऑफ ए क्रीपिंग ब्रांच्ड स्ट्रक्चर which grows horizontally to the surface of the soil. But when it enters into its leafy stage, some of the branches from this creeping structure, it grows in a vertical fashion and it stood erect and bear so many leaves. Okay, so this is known as their leafy stage. Okay बेटे, तो कहते हैं कि जब ये प्रोटोनेमा स्टेज में होते हैं तो उस समय जो इसकी क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम प्राइमरी प्रोटोनिमा कहते हैं। पर जब ये अपने लीफी स्टेज में एंटर कर जाती हैं तो फिर लीफी स्टेज जो है उसको हमने सेकेंडरी प्रोटोनिमा का नाम दिया। आपको बताया मैंने अभी कि लीफी स्टेज जो है इसमें कुछ ब्रांचेस स्ट्रेट खड़ी हो जाती हैं वर्टिकल फैशन में और लीव्स को बियर कर लेती हैं। ओके बेटे, अब एक ब्रांच को अपने माइंड में लेकर आइए, तो मान लीजिए कि एक ब्रांच के टिप पे आपको एक लेटरल बड डेवलप होते नजर आती है, तो लीफी स्टेज में भी ऐसे ही होता है। जो वर्टिकल ब्रांच है ना उसके टिप के ऊपर आपको एक लेटरल बड डेवलप होती हुई नजर आती है। ठीक है, और काफी सारे लीव्स इस ब्रांच पे आपको नजर आते हैं which are spirally arranged leaves. Okay, so all of these branches they are attached with the soil substratum with the help of root like structures known as a rhizoid. और ये जो लीफी स्टेज होती है ना वही सेक्स ऑर्गन्स को बियर करती है, बाकी सारा कुछ सेम है, सेक्स ऑर्गन्स एंथीरिया एंड आर्किगोनिया ही होंगे और बाकी चीजें वही होंगी। एंथ्रीडिया में एंथ्रोजोइड, आर्किगोनिया में एक्सेल, देन फ्यूजन इज देयर, जाइगोट इज देयर, जाइगोट डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट